Good afternoon, one and all. Today is 8th October 2021 and we'll be taking second session on graph theory, that is self-loop. If there is an edge whose starting and end vertices are same, that is starting from Vi and ending at Vj, is an edge, then it is called as a self-loop or a loop. So here we say that V4 is an edge which is starting from V4, vertex is starting from V4 and ending at V4. There are total V1, V2, V3, V4 vertices. So this vertex V4 is having a self loop because it is starting from V4 and ending at V4. So this is called as a self loop. Self loop means what? जो वर्टेक्स से एज शुरू होता है उसी वर्टेक्स पे वो एज खत्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ self loop. So if there is an edge whose starting and end vertex are same, starting from Vi, ending at Vi is an edge, then it is called as a self loop or a loop. Let's see, what do we mean by parallel edges? If there is more than one edge between the same pair of vertices, then they are known as a parallel edges or multiple edges. देखो यहाँ पर ये V1 V2 के बीच में दो एजेस दिए हुए हैं, एक एज V1 V2 को कनेक्ट कर रहा है, दूसरा एज भी V1 V2 को कनेक्ट कर रहा है. सो दोनों एजेस जो है वो V1 V2 वर्टेक्स के बीच में है. सो दैट इज कॉल्ड एज अ पैरेलल एजेस. ओके, so there are two parallel edges between V1 and V2 graph. So a graph which has either self loop or parallel edges or both, it is called as a multigraph. So उस ग्राफ में जिसमें या तो पैरेलल एजेस हो या सेल्फ लूप हो, जैसे ये वाला जो ग्राफ है पीछे वाला, तो इस ग्राफ में हमारे पास में सेल्फ लूप है, इस ग्राफ में हमारे पास में पैरेलल एजेस है. पैरेलल एजेस मींस मोर देन वन एजेस बिटवीन द टू वर्टेक्स, देन दैट टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड एज अ मल्टीग्राफ. उस टाइप के ग्राफ को क्या बोलते हैं हम? मल्टीग्राफ बोलते हैं. ओके, सो V1 V2 के बीच में एक से ज्यादा एज है, पैरेलल एजेस कहलाते हैं. V4 के ऊपर सेल्फ लूप है, दोनों ग्राफ मल्टीग्राफ है. दिस इज अ मल्टीग्राफ, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ मल्टीग्राफ. व्हाट वी आर लर्निंग? वी आर लर्निंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्मिनोलॉजीज विद अ ग्राफ. ये वर्टेक्स के ऊपर कुछ इस तरह से है, तो क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं? इसको सेल्फ लूप या लूप बोलते हैं. दो पैरेलल एजेस होंगे तो इसको पैरेलल एजेस बोलते हैं, या फिर उस टाइप के ग्राफ को हम मल्टीग्राफ बोलते हैं. Similarly, isolated vertex. What do we mean by isolated vertex? A vertex is isolated if there is no edge connected from any other vertex to the other vertex. एक ये जो V2 vertex है, इसका कोई भी connection U4 से नहीं है. So this V2 is isolated from V4, or you can say U4 is isolated from V2. So isolation means what? Those two are having no connection at all. ये एक अलग हो गया, ये एक अलग हो गया. डायग्राफ, डायग्राफ मींस डायरेक्टेड ग्राफ. लास्ट क्लास वी हैव सीन डायरेक्टेड ग्राफ. तो ये देखो एरो बने हुए हैं, ये डायरेक्टेड ग्राफ है. पर ये वाला जो ग्राफ है जिसमें V2 V3 V4 वर्टेक्स है, और दूसरा ग्राफ जिसमें U1 U2 U3 U4 है, दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो ये आइसोलेटेड वर्टेक्स कहलाएंगे. मतलब V4 is isolated from U1 U2 U3 U4. V2 is isolated from U1 U2 U3 U4. V3 is isolated from U1 U2 U3 U4. Similarly, in this term also we can say U1 is isolated from V2 V3 V4. U2 is isolated from V2 V3 V4. U3 is isolated from V2 V3 V4, and U4 is also isolated from V2 V3 V4. Now let's see degree of the vertex. The number of the edges connected with a vertex Vi is called the degree of the vertex Vi. Vi जो vertex है उससे कितने edges connected हैं, that is called as the degree of the vertex. इसमें दो पार्ट रहते हैं, इन डिग्री एंड आउट डिग्री. एक वर्टेक्स के ऊपर, इनको वर्टेक्स बोलते हैं, ये वर्टेक्स है V2 V3 V4, U1 U2 U3 U4, ये वर्टेक्स है जो नाम लिखे हुए, और इनके बीच में जो लाइन दिख रही है इसको एज बोलते हैं. सो देयर इज अ एज कनेक्टिंग U4 टू U1, देयर इज अ एज कनेक्टिंग U2 टू U1. सो हियर we say what do we mean by the degree of the vertex. Degree of the vertex means edges connected to that vertex. So in this degree it is being classified into two, in degree and out degree. In degree is the number of the edges incident onto Vi, and out degree is the number of the edges emitting from Vi. अगर उसके अंदर कोई एज आ रहा है, जैसे इस केस में V2 के अंदर एज आ रहा है, इसको इन डिग्री में काउंट करेंगे. V2 से एज बाहर जा रहा है, ये V2 का आउट डिग्री हो गया, V2 का इन डिग्री हो गया. ये वाली जो लाइन है
this line which is going into V2 is called as in degree, and the line which is going out of this is called as an out degree. So the total number of in degree is the number of the edges incident into Vi, and out degree is the number of the edges emitting from it, बाहर जो जा रहे हैं. पर अगर कोई लूप होगा तो उसको दो काउंट करना है डिग्री उसकी. क्यों? क्योंकि एक अंदर आ रहा है और एक बाहर जा रहा है. जैसे देखो ये वाला एक एग्जांपल लेते हैं. इन डिग्री एंड आउट डिग्री ऑफ द ग्राफ. इस ग्राफ में कितने वर्टेक्स है? सबसे पहले ए बी सी डी. देयर आर these four vertex, then E, F, G. So 7 vertex. A, B, C, D, E, F, G. Total 7 vertex are there in this graph. इन 7 vertex के अंदर ये एजेस कनेक्टेड है. ए से बी का एजेस कनेक्टेड है, सी से बी का एज कनेक्टेड है, डी से सी का एज कनेक्टेड है. अब ये एजेस जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, एंड दिस बिकॉज ऑफ दिस इट इज कॉल्ड एज अ डायग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ, क्योंकि इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई है. अब हम इंडिविजुअल वर्टेक्स का डिग्रीज देखेंगे. जैसे अगर हम ए वर्टेक्स बोल रहे हैं, वर्टेक्स ए, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस वर्टेक्स? दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू इन डिग्री एंड आउट डिग्री. क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है इसलिए इन डिग्री आउट डिग्री आएगा. अगर ये अनडायरेक्टेड ग्राफ होता तो सिर्फ डिग्री वर्ड यूज करते थे. ए का जो इन डिग्री है इसके अंदर कितने वर्टेक्स, कितने एजेस अंदर आ रहे हैं? सिर्फ जी से ए के अंदर एक आ रहा है, तो इसकी इन डिग्री 1 हुई. अब ए वर्टेक्स से कितने बाहर निकल रहे हैं? ए से बी निकल रहा है, ए से वाला डी की तरफ निकल रहा है, तो इसकी आउट डिग्री 2 हुई. सिमिलरली जो बी वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स के अंदर कितने आ रहे हैं? ये एक आ रहा है सी से और एक से बी से, तो ये 2 इन डिग्री हुई. बी से बाहर कुछ भी नहीं जा रहा, तो इसकी आउट डिग्री 0 हुई. सी वर्टेक्स के अंदर कितने आ रहे हैं? डी से सी पर जा रहा है, ई से सी पर जा रहा है, तो इसकी इन डिग्री 2 हुई. बाहर कितने जा रहा है? एक ही जा रहा है, तो इसकी आउट डिग्री 1 हुई. सिमिलरली डी वर्टेक्स, डी जो वर्टेक्स है हमारे पास में, इसकी आउट डिग्री 1 और इन डिग्री 1. अंदर कितना आ रहा है? 1, और बाहर कितना जा रहा है? 1. ई वर्टेक्स जो है, ई के अंदर 1, ई के अंदर इन डिग्री 1, आउट डिग्री 1. एक अंदर आ रहा है, एक बाहर जा रहा है. एफ के एक बाहर निकल रहा है, एक अंदर जा रहा है. जी से एक बाहर निकल रहा है, एक अंदर आ रहा है. ये बाहर निकल रहा है, ये दूसरा बाहर निकल रहा है, और ये तीसरा. अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. यहाँ लूप है, बाहर कितना निकल रहा है? दैट इज आउट डिग्री. तो लेट्स सी आउट डिग्री फर्स्ट. 1 2 और ये 3 आउट डिग्री हो गया ये. और ये लूप को हम इन डिग्री में भी काउंट करेंगे क्योंकि ये अंदर आ रहा है, तो इन डिग्री 1. तो कितना हुआ इसका? 1 2 और 3 आउट डिग्री हो गया. इन डिग्री के लिए ये यहाँ पर, और मैंने बताया था लूप के केस में हम इसको 2 काउंट करते हैं. वी काउंट 2 इन केस ऑफ लूप. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द इन डिग्री एंड आउट डिग्री ऑफ अ ग्राफ. Now I am closing the session.